six days lecture on the various topics of the Income Tax Act, and now it's seventh day. And I also welcome and thank my dear friend C. Raj Chawla, who is past president NIRC of IACI. And first of all, let me invite Sri Raj Chawla ji to say few words about today's topic. As today's topic are very important, we are going to cover three topics: clubbing provisions, when and how the clubbing is done, why giving gift to your wife can lead to clubbing also. तो इसलिए सोच समझ कर गिफ्ट देना होता है वाइफ को भी, वो ले लेती है, वो बात दूसरी है. And how to set off and carry forward of losses. And third is taxation of foreign remittance. So before starting, let me invite Shiraj Chawla ji to say few words about this topic, about the nitty gritty and how a practicing chartered accountant feels so many issues in this topic. Over to Raj Chawla ji. Thank you, Sunil ji. Good evening, everyone. First of all, I am thankful to Dr. Saurabh Agrawal ji for organizing this wonderful webinar for the members of our profession. I am also thankful to CA Sunil Garg, my dear friend, for giving me this opportunity to interact with all of you. And really, as Garg Saab said, today webinar topics are very relevant to our day-to-day practice. So my best wishes and to CA Sunil Garg for explaining the litigity of provisions under Income Tax Act, whether we should give to our spouse and whether that gift can be clubbed in our income or not, what precautions we should take. So I am thankful to CA Sunil Garg. Now I request to please. Thank you, Raj Chawla ji. Thank you for the kind words. And my dear professional colleagues and audience, it is always be a pleasure and privilege for me to present myself before you. And as I said in the beginning also, it's always a two-way traffic. As the audience learns, but speaker learns more. It's my personal thinking. And I am also learning a lot of things, because whenever I try to give something to you, I have to read in detail before presenting myself, as everybody knows. So friends, today's topic is very interesting: how, when, where clubbing is done, and why clubbing provisions. What were the reason why these provisions were brought into the act? Second, as you know, we have studied about the total income, then taxable income. As I said in the beginning also, that there is no concept like gross total income or taxable income. We have the concept of income and total income. Income is defined in 2 clause 24 and total income is defined in 2 clause 45. But if the total income is negative and you are, if there is a loss, then whether you will get the benefit of that loss or not, the loss can be adjusted in the current year, or how the loss has to be adjusted. Because in some countries of the world, there is a concept of buyback taxation. The assessee says, sir, I have paid the tax, and if I have the losses, then why don't you refund my tax? I already paid to you. But in India, we don't have that concept. We have the concept of carry forward and set off of losses. Okay, government says you pay taxes. If there is a loss of, as you know, there is a section 115 JB, MAT, minimum alternative tax, and AMT, 115 JC. Okay, where you are paying the tax on the book profits. Because in India, we have a lot of exemptions and deductions available to the assessee. But the government has given a fair equity playing field. If you are having a loss, you can set off in the current year. You can carry forward it to further 8 years, in some cases 4 years. And how the carry forward of loss is done, how the set off is done, what is the chronology in the current year, how to set off, then how to carry forward, we will learn today. And third important topic is very relevant in today's time. As you know, there is taxation on foreign remittance. There are two sections in the taxation of foreign remittance. One, of course, is section 195. As we have learned that income deemed to accrue or arise in India is also taxable. In case of non-resident also, if any income is received in India, deemed to receive in India, income accrued in India, deemed to accrue in India, is being taxed in India. Whenever we are remitting that income to a non-resident,
and how the tax has to be withheld, what forms are to be, what are the compliance provisions, what forms are to be filled. And as you know, friends, in this Finance Act 2020, our Madam Finance Minister has brought a new section. As you know, there is a scheme called Liberalized Remittance Scheme, LRS, where a resident can remit up to 2.5 lakh dollar for certain purposes given in the act itself, Rule 37BB, where you can remit that amount and without any permission from the Reserve Bank of India. Earlier, there was no withholding tax on the remittance. Nothing was there. But this Finance Act 2020 has brought a provision, Section 206C1G. And this section says, whenever you are remitting anything out of India, even under LRS, but that section is not covered in Section 195. That payment may not be covered under Section 195. But you are remitting, even if you are remitting to your children who are studying abroad, or you are remitting for the overseas tour package, this Finance Act has introduced a new TCS provision. 195 is TDS provision, tax withhold, but this is TCS provision. And what is the difference between the TCS and TDS? As you know, in TDS we withhold the tax, but in TCS the bank who is remitting the amount, or overseas tour package who is giving us overseas tour package, they will collect the tax from the remitter at the rate of 5%. So we are going to discuss all the three topics in detail. But before starting, let us, for those who have joined today, in 5 minutes, I will recap what we have learned till now in the past 6 sessions. We started our journey in the month of December. Namaskar, Lavleen ji. And we started with the general overview of Income Tax Act, where I have given you, where I have made you to understand that whenever you read the Income Tax Act, 4 things has to be kept in your mind. 4 बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है. One is income. It should be an income. 2 clause 24. Then it should come into the computation mechanism. It has to become the total income. Then Section 4(5) scope of total income and chargeability. अगर income chargeable नहीं है Section 5 में, अगर computation mechanism fail हो जाता है, then there will be no tax. Tax cannot be levied on that income. And we learned that there are 5 heads of income. Of course, starting from salary, Section 15, then income from house property, then profit and gain from business and operation, then capital gain. सुभाष जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज. सुभाष जी म्यूट कर लीजिए. Capital gain, then income from other sources. But friends, in each and every head, the first section is a charging section. 15 in case of salary, 22 in case of house property, 28 in case of profit and gains from business and profession, 45 in case of capital gain, and 56 in case of income from other sources. Once the income is income, then it comes into the total income and scope of total income. Again to be taxed, it has to fall in the charging section of a respective head. If it is not there, I have given an example, then income cannot be levied. Tax cannot be levied, as happened in case of capital receipt. Capital receipt taxable नहीं होती है हमारे यहाँ पर, इसीलिए because they are not being, वो इनकम है, क्लॉज 24 में इनकम बन जाती है, लेकिन कंप्यूटेशन मैकेनिज्म में नहीं आती, इसलिए कैपिटल रिसीट पर टैक्स नहीं लगता है. Then we learned about the residential status. As you know, friends, in India, the scheme of taxation depends on the residential status. It doesn't depend on the citizenship. Please understand, tax is not levied on the basis of citizenship. It is levied on the basis of residential status. You may be a foreigner, but if you are a resident in India, then you have to pay taxes on your global income, whether earned in India, whether earned outside India, whether received in India, whether received out of India. And we have learned 3 terms there. One is income received or deemed to receive in India. Another is income accrue or deemed to accrue in India. Third was income arise or deemed to arise in India. If any of the 3 things happen, then income will be taxable in case of resident Indian. And as you know, who is a resident? Either you were in India for 182 days or more,
number one, or you were in India for 60 days and in the past 4 years, 365 days or more, then you are being treated as resident Indian. And again, resident has two categories, resident and ordinary resident but not ordinary resident. If you are a not ordinary resident, and this Finance Act 2020 has made two major changes in the state in the definition of non-resident Indian. One, of course, is deemed residency. Deemed residency says section 6 capital 1A this year introduced in the Finance Act 2020 that if you are a person Indian origin or Indian citizen, the concept of Indian citizen has come into the play now. And if you are living in a country and you are not paying any tax, not liable to be taxed in that, जो लोग टैक्स हेवन कंट्री में चले जाया करते थे, उनको कवर करने के लिए now they have brought that you will be deemed resident in India, but deemed resident will never be a ordinary resident. Please, not my words. He can never be a ordinary resident. He will always be a not ordinary resident. क्योंकि दिक्कत क्या आई थी, लोगों ने कहा कि अगर मैं आपने रेजिडेंट बना दिया, हम इंडिया में कभी आए नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा कोई काम नहीं, फिर भी आप हमारी ग्लोबल इनकम को टैक्स कर देंगे. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट टैक्सेशन? एज यू नो, नॉन रेजिडेंट इज टैक्स्ड लाइक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज टैक्स्ड मोर लाइक ए नॉन रेजिडेंट, बट two incomes are being taxed for in case of not ordinary resident. One is income which arise from the business controlled from India. लोग कर ये रहे थे कि बिजनेस इंडिया में कर रहे थे, इंडिया से कंट्रोल बिजनेस पर बाहर पैसा कमाते थे, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको टैक्स करने के लिए नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन में चेंज लाया गया. और सेकंड, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया. वो दो केस ही नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल होते हैं. बाकी इनकम तो नॉन रेजिडेंट की तरह है. और नॉन रेजिडेंट में हमने समझाया था कि नॉन रेजिडेंट विल बी टैक्स्ड ओनली फॉर दैट इनकम विच एक्रू और अराइज इन इंडिया और विच इज रिसीव्ड इन इंडिया. नॉन रेजिडेंट को आप उसी में टैक्स कर सकते हो ना. बाकी अगर मान लो कि नॉन रेजिडेंट है, अमेरिका में रहता है, उसको अमेरिका की इनकम को ना आप टैक्सेबल करेंगे, उसको पे टैक्स थोड़ा लगाएंगे आप. तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही बनाया गया डीम्ड रेजिडेंट को. एंड सेकंड चेंज, मोस्ट इंपोर्टेंट चेंज वाज द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वर विजिटिंग इंडिया, दे वर not resident till 181 days earlier. Now this provision has been changed. If you are a income from other sources more than 15 lakhs, more than 15, अगर 15 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है, other than the foreign sources, अगर आपकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, then after 119 days, person of Indian origin or Indian citizen who are visiting India, now they will be not ordinary resident. रेजिडेंट नहीं बनेंगे सर. अभी भी रेजिडेंट जब बनेंगे जब 181 दिन से ज्यादा हिंदुस्तान में आएंगे, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाया है. तो अगर फाइनेंस एक्ट 2020 को हम समअप करें तो केवल एक चेंज किया सारे चेंजेस में कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की दो कंडीशन जो थी, 8 years you should be resident, not resident out of for the 8 years out of 10 years, and in the past 7 years you should not be more in India more than 730 days. उसमें दो कंडीशन और जोड़ दी हैं. ये मैं आपको इसलिए रिकैप कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं, टैक्सेबिलिटी बड़ा जरूरी है. सेक्शन 5 में टैक्सेबल होना बड़ा जरूरी है. देन वी लर्न अबाउट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, 44AD, 44AE, 44ADA. इसमें एक बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन इसमें है. 44AD4 को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है. देखिए इस बार बजट में क्या किया था, आपको 5 करोड़ रुपए तक अगर आपकी टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट्स हैं, तो आपको 44AB में जो क्लॉज 1 है उसमें टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है, प्रोवाइडेड 5% ऑफ योर रिसीट नॉट इनकम or 5% of your expenditure, payments, not expenditure, are not in cash. मतलब more than 95% is by check. Okay. Then the question arises, what happens in case of 44AD? So friends, if you are enjoying the benefit of 44AD, 44AD4 क्या कहता है कि if you are enjoying the benefit of 44AD, आप 44AD में थे, you came out of that scheme. Now, अगले 5 साल तक you cannot go back to the 44AD, but you have to get your accounts audited. तो उस केस में क्या होगा, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से भी कम है
तब भी आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। यानी इफ यू आर नॉट एंजॉयड द 44AD एनी टाइम, you are first timer, then up to 5 crore, you need not to go for the tax audit. But this liberty has not been given in case of 44ADA. 44ADA में लिबर्टी नहीं दी गई है, लोग बड़े कंफ्यूज हैं इसको लेके। 44ADA में लिबर्टी है, 44ADA में लिबर्टी नहीं है। In case of 44ADA, if you are pursuing a profession given in 44AA, and if your receipts are more than 50 lakhs and you are not declaring profit more than 50% or 50%, then you have to get for the tax audit under section 44AB. Please see the difference between 44AD and 44ADA. I got a lot of questions on that, तो मैंने इसको क्लैरिफाई करना और चीज समझा। Then I read, then we discussed about विवाद से विश्वास स्कीम 2020. Now there is a recent change. 4 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर दिया CBDT ने, बड़ा खतरनाक सर्कुलर है। I do not agree with that circular, लेकिन कमिश्नर्स आर फॉलोइंग दैट। एंड व्हाट दैट सर्कुलर सेज, वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास असेसमेंट हुआ, और असेसमेंट किस लिए हुआ 147, 148 में या 143 में, कि किसी और के यहाँ सर्च हुई थी, और जितने भी ये पेनी स्टॉक के केस हैं या वन टाइम एंट्री वाले केस है, वो तो कहीं ना कहीं सर्च हुई थी, तो उस वो केस भी हम सर्च के केस मान लेंगे। वी विल ट्रीट देम एज सर्च केसेस एंड वी विल चार्ज 25% एक्स्ट्रा इन दोज केसेस। बड़ी डिबेट इस पर चालू हो गई है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्कुलर है CBDT का 4 दिसंबर 2020 का। तो जिनको फॉर्म 3 आ भी गया था उसको भी वो रिवाइज करके भेज रहे हैं, लोगों ने उसके अगेंस्ट पिटीशन भी लगाई है। Let us see what happens and what is the stand of the government in this matter. So this is a recent change in Vivad Se Vishwas scheme. You please keep it in mind. Then we covered penalty provisions की penalty कब होती है, then prosecution when it is launched, when penalty is levied। और मैंने आपको एक बात बताई थी, what is the difference between the fee and penalty? फी इज ऑटोमेटिकली चार्ज। अगर आप लेट फाइलिंग फी करते हैं, आप रिटर्न टाइम पे जमा नहीं करवाते हैं, आप टीडीएस के रिटर्न टाइम पर जमा नहीं करवाते हैं, ऑटोमेटिकली आपको फी पे करनी पड़ती है। बट पेनल्टी हैज टू बी लेवीड, and before levying the penalty, the assessing officer has to give an opportunity of being heard to you. It's a law of natural justice. तो पेनल्टी और फी, और इसलिए सरकार अब फीस की तरफ बढ़ रही है, हर चीज में फीस लगा रही है। तो पहले फीस दे जाओ, पेनल्टी तो हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे हमको नहीं पता। Then we covered capital gain taxation, and then TDS and TCS provision. We have very elaborate discussion on those provisions. And in the last session, we have deeming provisions, where I told you that all the things what we have learned about the income, real income theory, they get vanished when we come to deeming provisions. ऐसी income जो provision जो tax नहीं है, जिस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, या जिसकी क्वांटिफिकेशन नहीं पता। 50C क्या कहता है, आपकी प्रॉपर्टी, आपने 1 करोड़ की सर्कल रेट की प्रॉपर्टी आपने 60 लाख में बेच दी, बायर भी कह रहा है मैंने 60 लाख में ली है, सेलर भी कह रहा है मैंने 60 लाख में बेची है, पर सरकार कहती है नहीं साहब, 1 करोड़ पे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा सेलर को, और 40 लाख का जो डिफरेंस है, जो आपने 10% से कम खरीदी है प्रॉपर्टी, उस पर टैक्स देना होगा पूरे बायर को 40 लाख रुपए पर। In the month of November, our Honorable Finance Minister has given a provision in the press conference. She declared, she announced, but sorry to say, we have not received the notification for that announcement. And what she has announced, that in case of primary sales means sales from builder, जो builder के flat नहीं बिक रहे हैं, उस केस में safe harbor limit will not be 10%, it will be 20%. But you will be safe up to 20% if it is the property sold or purchased below 20% or 120% of the sale consideration, circle rate is there, then there will be no deeming provisions applicable under section 50CA, 50C, 56 to 10. But because we are waiting for the circular to come, detailed notification has not been. Then we learned about the taxation of charitable trust and exempt income. And I said that 11, 12, 13 is a statute in itself. When they are into picture, no other provision applies. Only 40AIA or 40A3 special provision has been made that they will be applicable, and you have to take the application for that. Otherwise, all the provisions will not be applicable. But friends, if you are a charitable institution and you are doing any business, or if the business is not incidental to the main object, as I have given you the example of marriage hall by education institution,
then 11.4a will come into the picture, and all the provision of section 28 to 44c will be applicable to you, and in that case you have to get your accounts audited. And one more thing, friends, 11.4a also says if you are doing any business activity which may be incidental to the main object, for example, a college running a hostel, or a college running a cafeteria, a college running transport, as per the law, we generally practically we do not maintain, but I will suggest you that the law says you have to maintain separate books of accounts for such activities. Please prepare separate books of accounts, because the certificate of registration what we are getting from the Commissioner Income Tax under section 12AA, they specially mention this fact. They are specially mentioning now that please maintain separate books of accounts for such activities. And another important thing is, for all the charitable trusts or institutions, now you have to get your registration afresh. Earlier date was August, then extended to December, and now it is from 1st April 2021. All the trusts registered have to get their registration afresh. All the trusts who have got the registration under section 80G, now they also have to get the fresh registration. Now coming to today's topic about the section 64, and what it says in 3 cases. One is spouse. Spouse not on doesn't means wife. Spouse means either husband or wife, both. It is not wife only. Second is minor son, and third is son's wife, putra vadu. In these cases, income is clubbed in the hands of the person who has transferred the income, who has transferred the asset. If you have transferred any asset without adequate consideration, आपने asset transfer कर दी without adequate consideration. And as you know, in section 27, income from house property, if asset is being transferred to your spouse without adequate consideration, then the deemed owner is the person who has transferred the asset. As you know, this 27 is there. And the income will be clubbed in the hands of the person. Any other income, if you have transferred to your spouse without adequate consideration, then it will be clubbed in the hand of the person who has transferred the asset. Friends, we have learned about section 63, revocable or irrevocable transfer. Because it is a transfer without adequate consideration, then it will be taxable. But the natural question arises in section 56 to 10, gift to your wife or husband is exempt from tax. आपने गिफ्ट को तो एग्जेम्प्ट कर दिया टैक्स से, तो फिर एक क्लबिंग क्यों? देखिए, इनकम एग्जेम्प्ट होना अलग बात है, बट सेक्शन 64 क्लबिंग करेगा क्योंकि वो चार्जिंग सेक्शन बन गया, वो क्लबिंग करता है उसके बाद भी। लेकिन इनकम और इनकम विल नॉट बी क्लब। मान लीजिए आपने अपनी वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को 1 करोड़ रुपए गिफ्ट कर दिया, दैट इनकम, बिकॉज गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट, 1 करोड़ रुपए तो आपका वो टैक्स नहीं होगा, बट इंटरेस्ट, और मान लीजिए वाइफ ने उसको एफडी करवा दिया, 6 लाख रुपए ब्याज आता है उसके ऊपर, 6 लाख रुपए का जो ब्याज आएगा दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड्स इनकम। बट अगर मान लीजिए उसने 6 लाख रुपए को दोबारा एफडी करवा दिया, उस पर जो ब्याज आएगा दैट विल नॉट बी क्लब। इनकम इज क्लब, बट इनकम और इनकम इज नॉट क्लब। Now, what is this section 64 says? If a person has directly or indirectly has transferred the income to his or her spouse, even in case of a firm or in a concern which he has a substantial interest. मान लीजिए आपने अपनी वाइफ को या हस्बैंड ने वाइफ की फर्म में उनको सैलरी पे आपने दे दिया। हम बहुत सारे केसों में देखते हैं सैलरीज होती हैं, है ना, सैलरी आप देते हो। But if the salary is due to the technical skill or the ability of that husband or wife, it will not be clubbed. Otherwise, it will be clubbed. There is an exception to section 64(1) that if this amount is attributable to the technical or professional skill, knowledge or experience, जरूरी नहीं है कि उसको वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो। अगर मान लीजिए वो शादी से पहले
अकाउंट्स में काम करती थी, और शादी के बाद उसने फर्म, अपने हस्बैंड की फर्म ज्वाइन कर ली, एंड शी इज बीइंग पेड से 40,000 रुपीज सैलरी, और वो भी 40,000 दे रहे हैं, इट विल नॉट बी क्लब, इट विल नॉट बी क्लब, बिकॉज द वर्ड इज द इनकम शुड बी एट्रीब्यूटेबल टू द टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल और नॉलेज और एक्सपीरियंस। लोग यहाँ बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि साहब देखा क्लबिंग है तो क्लब कर देते हैं, नहीं साहब, आप देखिए अगर उसको नॉलेज या एक्सपीरियंस के कारण वो पैसा मिल रहा है, इट विल नॉट बी क्लब। दो एक्सेप्शन दिए हैं इसमें भी। वन एक्सेप्शन इज इफ द ट्रांसफर ऑफ असेट इज फॉर एडुकेट कंसिडरेशन, इफ देयर इज ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, husband sold the flat and wife purchased it, no clubbing will be done, no clubbing will be done. Or second case is if the asset is being transferred in consideration in lieu of an agreement to live apart, अगर मान लो डिवोर्स हो रहा है उनका and the asset is being transferred, then it cannot be clubbed because the relationship has ended. Now they are not husband and wife, there is no relationship, so income will not be clubbed in that case, in case of the spouse. Second is son's wife, daughter in law. Basically clubbing provisions 1970s में आए थे, and the purpose was because the rate of tax at that time was very high, as high as 80, 85%, 90%. लोग करते क्या थे, the income, because we were having slab rates, they were transferring the assets, and generally because in those days ladies were not, generally they were housewives, generally they were housewives, so they were transferring the assets to get the benefit of the taxation. But this provision, I have so many times at many firms I have said, at least clubbing provisions between husband and wife should not exist these days, because girls are as intelligent as men and they are working, I think, more than men. So what is the logic of clubbing provisions? I couldn't understand. Second is son's wife, putra vadu ko, if you have given transfer an asset, transfer the income, or transfer income without transferring an asset. You may transfer the income, but you are not transferring the asset. In that case also, clubbing will be done. Another question arises, and this is a question of succession planning, friends. Now, there is a new concept in the succession planning. As you know, every person wants that after me, the assets and income should be transferred to my legal heirs. Everybody wants this. सब चाहते हैं कि मेरे बाद मेरी इनकम मेरे फैमिली को, मेरे लीगल ईयर्स को, मेरे बच्चों को ट्रांसफर हो जाए. टू ट्रांसफर दीज असेट्स, देखिए देयर इज ए हिंदू सक्सेशन एक्ट, एज यू नो, हिंदू सक्सेशन एक्ट. इफ ए पर्सन डाइज इंटरस्टेट, मतलब he or she has not made a will, he dies or she dies, then the property, the assets will be transferred as per the Hindu Succession Act. आप क्लास 1, क्लास 2, जो भी आपके लीगल ईयर्स हैं, आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं. और सेकंड इज द विल. You made a will, you made a will in your lifetime, and this should be your last will. Then the assets will be transferred as per the wishes of that the person who has made a will, और आपको will को प्रोवाइड करवाना होता है. Third is HUF, as you know, Hindu undivided family. But in Hindu undivided family, the concept was very good in the past, but now people are not following that, because in Hindu undivided family, what happens? Generally, why the people do not follow it? If any asset is being transferred to HUF, or the HUF holds any assets, then selling those assets is very difficult. If there is a minor interest in that property, you cannot sell that property without the permission of civil court. You cannot sell this property. And you know, in HUF, what happens? Always, because it's a continuous process, and always there is a chance of having a minor interest. आपके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी होगी तो उनके बच्चे आ गए, तो उनका ही माइनर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि up to 4 generation the HUF continues. And the recent development is, now this concept is now getting very popular now, and I will request my young professionals who are into practice to think about it. That is the concept of family trust. Family trust is a very important tool for the clubbing, for the succession planning. Another question arises, if you transfer the asset to a family trust, whether it will be clubbed.
अगर क्लबिंग है तो फिर तो फायदा नहीं ना ट्रांसफर करने का ना. द एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड इनटू द इनकम टैक्स एक्ट टू अवॉइड द क्लबिंग प्रोविजन. एंड व्हाट इज दैट प्रोविजन? एज यू नो, वी हैव रेड सेक्शन 60 to 63 that if it is not a revocable transfer. And what is a revocable transfer? If the asset is not being going back to the settler or the transfer during his or her lifetime. आपने अपनी लाइफ टाइम के लिए उसको ट्रांसफर कर दिया फैमिली ट्रस्ट में, देन इट विल बी ए irrevocable transfer. In case of irrevocable transfer, clubbing will not happen. Clubbing will not happen. And in section 47, when you set up a family trust, section 47(3) provides that if irrevocable transfer, if asset is being transferred irrevocably to a family trust, then it will not be deemed as a transfer. As you know, friends, what happens in case of family trust? There is a settler or a author or a person who owns the asset. Second is the beneficiary for whom benefit the asset is being transferred. And third is the trustee who will manage the affair of the trust during the period till the asset is finally transferred to the beneficiary. तो आप फैमिली ट्रस्ट में जो भी आप कंडीशंस आप रखना चाहते हैं, इवन द सेटलर कैन बी ए ट्रस्टी. देयर इज नो बार. आप सेटलर है, आप ट्रस्टी बन जाइए. तो जैसे मैंने बताया, क्या होगा, आप फैमिली ट्रस्ट सेटअप कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए. एक हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हैं. हस्बैंड ने असेट्स ट्रांसफर की फैमिली ट्रस्ट को, और हस्बैंड और वाइफ दोनों ट्रस्टी बन गए, और बेनिफिशियरी उनके बच्चे हो गए. Then what happens at the time of the transfer, because it is not a transfer under section 47(3), no tax liability. Again, a provision has been incorporated in section 56 to 10, क्योंकि अभी जो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल ना हो जाए कहीं, तो रिसिपिएंट के हाथ को भी टैक्सेबल बचाने के लिए कर दिया कि इफ द असेट्स इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय ए पर्सन टू अ फैमिली ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव, एंड रिलेटिव की डेफिनेशन जो सेक्शन 56(2) में ही दे रखी है, 10 में दे रखी है, देन इट विल नॉट बी अ इनकम चार्जेबल टू टैक्स. तो ना ट्रांसफर को टैक्स लगा, ना रिसिपिएंट को टैक्स लगा, एंड यू कैन सेट अप ए फैमिली ट्रस्ट. एंड एज यू नो, ट्रस्ट आर ऑफ 2 kinds. One is the specific trust or determinate trust, where the share of the beneficiary has been decided by the settler. जो ऑर्डर है, जो सेटलर है, उसने शेयर ऑफ बेनिफिशियरी को डिसाइड कर दिया. दैट इज द डिटर्मिनेट और अ स्पेसिफिक ट्रस्ट. एंड अनदर इज इनडिटर्मिनेट और discretionary trust, where the income, how the income will be distributed, it depends on the discretion of the trustee. The author, the settler, has not set up the condition, and the taxability of both the trusts is different. In case of a specific trust or determinate trust, as you know, अगर आपकी ट्रस्ट स्पेसिफिक है, डिटर्मिनेट है, shares has been determined, the income will be taxable at the same rate, in the same mode. It would have been taxable in the hands of the beneficiary. अगर उनके हाथ में जो भी स्लैब आएगा, उसी रेट पे आपको टैक्सेबल टैक्स उस पर लगता है. देयर इज नो डिफरेंस, कोई उसको टैक्स लायबिलिटी फर्क नहीं पड़ता. एंड ट्रस्टी दो दे मे और मे नॉट, in case of a specific trust, because the income is being taxed in the hands of the beneficiary only, so trustee may file the return of income of the beneficiary in the representative capacity, or secondly, beneficiary may add that income, trust से जो income आ रही है, in their hand and file the tax. But in case of a discretionary trust, or indeterminate trust, where the discretion lies with the trustees, then the tax rate, the income is taxed at maximum marginal rate, MMR. There are certain exceptions. When we will discuss the family, this succession planning in detail, I have promised Saurabh to have a session on that succession planning. Then I will give in detail the nitty-gritty of this. But this is the basic thing. If you are going to set up a family trust, this can be a good tool. Made a specific trust, be a trustee of that trust, and you can transfer. और सबसे बड़ी बात आपको पता है लवलीन जी, हर बार जब भी बजट आता है तो एक बड़ा शोर होता है कि एस्टेट ड्यूटी ना लगा दे सरकार, एस्टेट ड्यूटी ना लगा दे सरकार. तो देयर आर 2 बेनिफिट्स ऑफ द फैमिली ट्रस्ट. वन इज एस्टेट ड्यूटी से आप बच जाएंगे. एस्टेट ड्यूटी विल नॉट बी लेविड बिकॉज यू हैव ट्रांसफर्ड द एसेट टू द फैमिली ट्रस्ट. सेकंड, रिंग फेंसिंग ऑफ द एसेट्स. देखिए आजकल बड़ी अनसर्टेनिटी है बिजनेस में.
बिजनेस में कभी नुकसान हो जाए, कभी ज्यादा कोई और प्रॉब्लम हो जाए, कोई और अटैचमेंट हो जाए, बट देयर इज अ रिंग फेंसिंग, आपको एक कवच मिल गया, सुरक्षा कवच मिल जाता है फैमिली ट्रस्ट से। तो यंग प्रोफेशनल्स, आई विल सजेस्ट यू, for those clients who have high net worth individuals or high net worth or businessmen, you study the family trust structure. It is a very good structure now, and in coming times, because now Indians are owning more and more assets. पहले तो पैसा ही नहीं था ना, अब तो बहुत पैसा आता जा रहा है. Then this structure, this practice of family trust is going to be a very good area of practice. So I have given you the initial look of the family trust, initial insight into the family trust, how it works, what are the taxability, and as I said, at the time of transfer, there is no tax, no tax in the hands of the recipient, and of course, the income which accrues to the family trust will be taxable in the hands of the beneficiary if it is a specific trust at their slab rate. मोटा मोटा आप समझ लीजिए, इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट एट द रेट ऑफ एमएमआर. बट अगर आप बिजनेस करते हैं स्पेसिफिक ट्रस्ट में, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वहां पर एमएमआर लग जाता है. बट मोटा मोटा आप इस बात को समझ लीजिए. Then in whose hand the income will be clubbed? Of course, in the case of the assessee or in the case of spouse, in the hands, because आप हस्बैंड वाइफ के, मान लीजिए आप एक कंसर्न है जिसमें हस्बैंड का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और वाइफ का भी है. अब सवाल उठा कि किस में टैक्सेबल करें, हस्बैंड में करें, वाइफ में करें, दोनों को उसमें पैसा मिला उस कंसर्न से, तो जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में टैक्सेबल, उसके हाथ में ये क्लब हो जाता है. सिमिलर इज द केस विद द माइनर. माइनर के केस में भी जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होती है उसके हाथ में क्लबिंग होती है. लेकिन अगर मान लीजिए डिवोर्स हो गया, इफ द मैरिज डज नॉट एग्जिस्ट, then in case of minor, clubbing will be done in the hands of the person or the parent or the guardian who is maintaining that kid as per the order of the court. Now in case of minor, I have covered son, spouse, then son's wife, and third is the case of minor. In case of minor, any income which accrue or rises to a minor, it will be included in the hands of the parents. And in whose hands? Who has greater income? If wife has greater income, in the hands of the wife, or father who has the higher income, higher slab of income, in his hands it will be taxable. But there are two exceptions, three exceptions are there in case of minor income. One is if your child is a disabled child. एटीयू हम कल पढ़ेंगे, एटीयू को डिटेल में, कि एटीयू में अगर डिसेबल्ड है, income will not be clubbed. Income will not be clubbed. Or if the income is being earned by manual work done by him. Or third is if he has earned the income by application of skill, talent, knowledge, experience. ये जितने डांस शो होते हैं बच्चों के, क्विज कंसेप्ट, क्विज में पैसा बच्चा कमा लेते हैं, वो इनकम भी क्लब नहीं होती है. If the income of the minor is earned by his skill, by his knowledge, by his talent, then it will not be club. अब सवाल उठा कि माइनर की इनकम क्लब नहीं होगी तो रिटर्न कैसे फाइल होगी? बिकॉज माइनर तो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता. ऑफ कोर्स द पेरेंट, he will file the return of income because minor cannot sign that return. He is not competent. He or she is not competent to contract. He cannot sign that return. Then the parent will file a separate return of minor if the income is earned by him as a manual work or due to his talent, skill, knowledge, experience, or in quiz contest or dance competition. Or if minor is a disabled minor, then income will not be clubbed, and then the parents will file the return of income in the representative capacity. And you know, the section 10 clause 32, if the income is clubbed in the hands of the parents, then you get an exemption of rupees 1,500 per minor child in whose hand income is being clubbed. 1500 रुपए बड़ी छोटी सी डिडक्शन है. 1500 रुपए बहुत सालों चली आ रही है. 1500 रुपए की आपको छूट देते हैं क्लबिंग अगर आपके हाथ में होती है तो. Similar is the case with the HUF. As you know, when we read section 56 to 10, income, if we receive a gift from the member to the HUF,
or HUF to member is not a taxable gift. It is not a taxable income. लोग करते क्या थे, लोग यही काम करते थे कि अपनी इनकम को बचाने के लिए अपने हाथ में टैक्सेबल ना करके दे ट्रांसफर इट टू द HUF. HUF को आपने ट्रांसफर कर दिया सेट. Now what happens? Though it is not taxable under section 56(2)(10), as I said in case of the spouse or wife, husband or wife, but again same provision come into the picture. Clubbing provisions will come into the play in case of if you are transferring any asset to the HUF. अगर आप HUF को कोई property transfer कर रहे हैं as a member, as a co-partner, then income will be clubbed in the hand of the person who has transferred that asset without adequate consideration. Of course, if you have taken a adequate consideration as per the circle rate or as per the fair market value, then no clubbing provision will be there. Section 65 says the liability of person still exists. ऐसा नहीं कह सकते साहब क्लबिंग हो गई, मान लो हस्बैंड की इनकम वाइफ के हाथ में, अब हस्बैंड कहते हैं मैं तो नहीं देता जी पैसे, जो तने करना है कर लो. नहीं. Section 65 says that he can be taken, he or she will be liable for that also. आप उसको मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप मेरी इनकम वहां पे क्लब हो गई है तो मैं आप टैक्स नहीं दूंगा या दूंगी. The department can ask tax for them. He or she can be assessed in default. And same is the case अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, बड़ी दिक्कत आती है कई बार प्रैक्टिकली. जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसका रेंट जाके क्लब हो गया, उसके बाद ही पैसे नहीं देने के लिए जिसके हाथ में क्लब हुआ. कई बार बड़ी जो पुरानी प्रॉपर्टीज है जहां बड़ी या डीम्ड रेंटल वैल्यू बहुत ज्यादा है वहां पर, तो और कॉर्नर कोई और भी है उसमें, मान लो कोई और फैमिली मेंबर भी कॉर्नर है, देन if the asset is held by more than one person, all the joint owners, all the co-owners can be held liable to pay that portion of tax, जिसके कारण से उसको दिक्कत हो रही है. This is section 65. हम पढ़ते नहीं है जनरली इसको. It's a very important section. Now coming to carry forward and set off and carry forward of loss. We can take a break of 4-5 minutes for any question, 1 or 2 question. और सौरभ जी कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए. एक या 2 सवाल हम ले लेंगे. ये सर एक मिनाली शाह का है क्वेश्चन. वो कह रही है आई हैव वन क्वेरी, देयर इज वन फ्लैट इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बट मेजॉरिटी अकाउंट इज मेड बाय हस्बैंड. Further, this property is rented and rent is shared equally between both. Whether is it correct or income should be taxed in the hands of husband? देखिए सर, मैंने आपको एक बात शायद पिछले सेशन में बताई थी. ये जनरली लोग क्या करते हैं कि वाइफ का नाम प्रॉपर्टी में डलवा देते हैं, ठीक है ना. तो वो एक फैमिली सक्सेशन के हिसाब से या सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर वाइफ की कोई इनकम नहीं है, वाइफ की अगर कोई इनकम नहीं है और आपने प्रॉपर्टी में खाली नाम डलवा दिया, तो डी फैक्टो जो ओनर होगा ना वो हस्बैंड ही होंगे, तो इनकम उनके हाथ में ही जानी चाहिए हिसाब से. तो अगर आप हस्बैंड वाइफ प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो दोनों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. द इन्वेस्टमेंट शुड ऑल्सो कम फ्रॉम वाइफ. यू कैन नॉट से कि साहब उसके पास पैसा नहीं है और मैंने लगा दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली तो आपने उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया ना उनको, वो पैसा आपने उनको ट्रांसफर कर दिया. मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लिया, 50 लाख हस्बैंड ने दिया, 50 लाख वाइफ ने दिया, और वो 50 लाख वाइफ वाला भी हस्बैंड ने दे दिया, तो अल्टीमेटली यू आर ट्रांसफरिंग 50 लाख टू योर वाइफ ना एज ए गिफ्ट. तो इनकम विल बी क्लब्ड इन सेक्शन 64. इनकम विल बी क्लब्ड. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ सर, एक मेरा भी क्वेश्चन है. सर अपना कभी कभी सर ऐसा होता है कि जैसे हस्बैंड ने अप्लाई किया और अथॉरिटी ने उसको फ्लैट अलॉट कर दिया 1 मिनट के लिए, लेकिन जैसे यूपी के अंदर ये रूल है कि पैसे चाहे कोई भी दे, जो प्रॉपर्टी होगी वो हस्बैंड और वाइफ के नाम में ही होगी. ये एक नया रूल निकला है यूपी के अंदर. तो अब वाइफ ने पैसा तो 1 रुपए नहीं दिया, लेकिन अब दोनों का नाम आ गया, कोई बात नहीं, और नहीं स्टैम्प पेपर भी. अब जो रेंट आ रहा है वो भी हस्बैंड के पास ही आ रहा है, लेकिन आ रहा है जॉइंट अकाउंट में, जो दोनों का जॉइंट अकाउंट. मैं और थोड़ा इसको एलाबोरेट करता हूं. मान लीजिए एक और बात है, अब जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी तो उसमें वो कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी के अंदर और भी कोई आपका साथी है,
तो आपको उसमें बताना पड़ रहा है कि हाँ जी एक और साथी है और 50% वो है। अब जो वाइफ है वो ऑब्जेक्ट कर रही है कि भाई मैं क्यों रेंट के ऊपर, जब रेंट जॉइंट अकाउंट में आया, लेकिन ठीक है वो भी हो गया, लेकिन सर इनकम मैं इसको और एलोबरेट करता हूँ। मैं समझ गया हाँ, सर, मैं और एलोबरेट करता हूँ। उसमें क्या हो रहा है ना, 50% वो टैक्स चार्ज कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी पे। अच्छा, मैं आप ये भी नहीं कह सकते मैं 100% ओनर हूं, तो सर अब क्या करें? मैं सर इस मैं इसको एलोबरेट करता हूँ सर। ओके इसको समझिए, मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी है हस्बैंड वाइफ के नाम से, सारा पैसा हस्बैंड ने दिया और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, उस पर टीडीएस कट रहा है। अब जो टेनेंट है वो कहता है साहब मेरे पास जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का नाम है, तो आधा आधा चेक दूंगा और आधा टीडीएस काटूंगा। अब आप क्या करोगे? देखिए सर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अलग चीज है, ओनरशिप अलग चीज है सर, इनकम टैक्स एक्ट अलग चीज है। सेक्शन 27 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी में आप, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका पैसा आपने ट्रांसफर भी कर दिया वाइफ के नाम से, यही तो हुआ ना सर कि आपने पैसा लगाया और आपने 50% शेयर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, तो सेक्शन 27 विल कम इनटू द प्ले, विल कम इनटू द पिक्चर। देयर इज अ स्पेशल सेक्शन 27 इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो आपको अब चेक आ गया मान लो वाइफ के नाम में और टीडीएस भी उसमें आ गया। अब क्या करेंगे आप? इनकम टैक्स में रिटर्न में प्रोविजन है, अगर आपकी इनकम दूसरे की क्लब हो रही है तो उसके पैन नंबर का टीडीएस भी आप ही क्लेम करेंगे। यू कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ दैट टीडीएस which has been deducted in the name of your wife and the income is being clubbed in your hand. There is a provision, there is a section and you can claim that TDS also. तो इसलिए उस केस में टीडीएस भी आप क्लेम करते हैं, इनकम भी आप क्लेम करते हैं और टैक्स भी आप देते हैं। गुड इवनिंग सर। जी सर एक छोटा क्वेश्चन पूछना था कि क्या कहते हैं हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम रजिस्टर्ड ओनर्स देखें या जिसने फाइनेंस करी है प्रॉपर्टी वो देखें, सारे केसेस में, नॉट इवन हस्बैंड वाइफ? सर देखिए, अगर क्या होता है सिस्टम कि प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी का एक नियम है, वो ये है कि अगर मान लो शेयर्स आर नॉट डिक्लेयर्ड इन दी रजिस्टर्ड डीड, देन इट इज डीम्ड कि जितने भी को ओनर है वो सब इक्वल पार्टनर्स हैं। दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बट इनकम टैक्स एक्ट इज समथिंग डिफरेंट स्टैच्यू सर। वहां पे तो आपको डिफेक्टो ओनरशिप देखनी है कि उसने किसने पैसे दिए हैं और कौन उसका ओनर है, किसके हाथ में क्लब होगी सर। तो सर फिर इसी के बेसिस पे ही फॉर्म 26 क्यूबी फाइल होगा? जी बिल्कुल, जी ठीक है बिल्कुल। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, sir. Thank you. Now, coming to our second topic, very interesting but very confusing. Very, very confusing. मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, रोज पढ़ता हूँ, रोज कंफ्यूज होता हूँ इसमें। मैंने I have tried to make it very, very simple. I may miss some provisions in the adventure to make it a simple thing. बट मैं जिस्ट बताता हूँ आपको उसकी कि क्या है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। As I said in the beginning of my today deliberation, कि the assessee should has a ultimate right if he is paying taxes on income, so he should also be eligible to get his or its losses to be adjusted. आप ये नहीं कह सकते साहब इनकम पे तो टैक्स दे जाओ, लॉस होगा तो हमें कोई मतलब नहीं है जी, लॉस तो आप भुगत लो, ऐसा नहीं हो सकता सर। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, थ्री काइंड्स ऑफ एडजस्टमेंट। वन इज इंटर, जो कि हम उस साल में करते हैं जिस साल में सारा हमारा लॉस हुआ, इंटर हेड एडजस्टमेंट। सेकेंड इज सॉरी, फर्स्ट इज इंट्रा विद इन द हेड, विद इन द हेड। आप 3 फर्म चला रहे हैं, एक फर्म में प्रॉफिट है, दूसरे फर्म में आपको लॉस है, इंटर हेड एडजस्टमेंट हो जाएगी। इंटर हेड, इंट्रा, सॉरी इंट्रा हेड, विद इन द हेड, इंट्रा विद इन, विद इन द हेड, इंट्रा, इंट्रा हेड। आपको कैपिटल गेन है और कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, आप कर लीजिए इंट्रा हेड। आपके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है, एक में आपको इनकम आ रही है, दूसरे में लॉस है। लॉस क्या हो सकता है? ड्यू टू द इंटरेस्ट आपको लॉस हो सकता है, या सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख का लॉस हो सकता है। आप एडजस्टमेंट कर लीजिए इंट्रा हेड। फर्स्ट इज इंट्रा हेड। आप ये नहीं कर सकते मैं इंट्रा हेड नहीं कर रहा, मैं पहले इंट्रा हेड करूंगा। नो 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 नो,
फर्स्ट स्टेप इज इंट्रा हेड। ऐसी सिचुएशन भी आती है जब आपको फायदा नजर आता है कि यार पहले वो कर लेता हूं मैं जो पुराना आया है, ना ना ना, क्योंकि टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है ना सर, इंट्रा हेड। सेकेंड, ये नहीं कर सकते कि मैं इंट्रा हेड को तो नहीं कर रहा, मैं तो कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ जी, पहले इंट्रा हेड का दे दो मेरे को बेनिफिट। नो सर, नॉट अलाउड। इंट्रा हेड फर्स्ट है। सेकेंड इज इंटर हेड, बिटवीन द हेड्स। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप उससे कर लीजिए। दे आर सर्टेन एक्सेप्शंस, आई विल लेट यू नो कि क्यों एक्सेप्शंस है, मतलब क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्यों एक्सेप्शंस दिए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो वेरी सिंपल, वन इज इंट्रा हेड, विद इन द हेड आप एडजस्ट कर लीजिए, हमें कुछ नहीं है। इंट्रा हेड करने के बाद में जो आए टोटल इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, फिर कैरी फॉरवर्ड लॉस को एडजस्ट कीजिए, डिडक्शन ले लीजिए, टोटल इनकम निकाल लीजिए, टैक्स दे दीजिए। सेकेंड इज इंटर हेड, और अगर तब भी आपका पेट ना भरे तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। तो पहला नियम तो कैरी फॉरवर्ड का समझ लीजिए। कैरी फॉरवर्ड में जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन को छोड़कर, कैरी फॉरवर्ड में जिस हेड की लॉस है उसी हेड में ही एडजस्ट होगा। हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा। कैरी फॉरवर्ड केस में मैं उल्टा चल रहा हूं, लॉजिक की बात भी है। बिजनेस है तो बिजनेस भी होगा, बिजनेस में ही हो जाएगा। अगर अदर सोर्स का लॉस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स, उसी से होगा। स्पेकुलेटिव लॉस है, उसी से। कैरी फॉरवर्ड के केस में जब आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, आपने उस साल को नहीं अगले साल में, केवल डेप्रिसिएशन इज ए लॉस, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉट ए लॉस, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए करंट ईयर लॉस। तो उसकी ट्रीटमेंट अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है तो उसकी ट्रीटमेंट 32(2) में दिया हुआ है कि उसकी ट्रीटमेंट करंट ईयर डेप्रिसिएशन के हिसाब से ही होगी। मीनिंग देयर बाय दैट कि अगर मान लीजिए आपने कैरी फॉरवर्ड लॉस लेके, डेप्रिसिएशन लेके आ रहे हैं, पहली बात तो डेप्रिसिएशन इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होता है, वो कहते हैं साहब इसका तो आपको बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। और सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का लॉस बन जाता है, आप उसको इंटरहेड भी कर सकते हैं, अदरवाइज तो बिजनेस का बिजनेस में होगा। एक तो थंब रूल ये समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इंट्राहेड की। पहला नियम इंट्राहेड। अच्छा, उससे पहले एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, बेसिक रूल्स। दूसरा, अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं की, इफ यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न ऑफ इनकम ऑन द ड्यू डेट, देन व्हाट हैपेंस, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द लॉस। आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस के। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बाकी लॉस का आपका क्लेम गया। लेकिन अब सवाल उठा कि मान लीजिए आप उससे पहले का लॉस आप लेके आए थे, आपने इस बार रिटर्न 10 जनवरी को नहीं भरी साल, लेकिन लास्ट ईयर रिटर्न तो टाइम पे भरी थी, वो मिलेगा, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका आपको एडजस्टमेंट मिलेगी। लेकिन ये जो इस साल का लॉस होगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट द लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर। दूसरा नियम मैंने बता दिया था, रूल्स फॉर सेट ऑफ फर्स्ट इंट्राहेड देन इंटरहेड। और जितने भी लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं जनरली 8 ईयर्स, मतलब जनरली क्या, डेप्रिसिएशन इन्फिनिटी के लिए, बाकी 8 ईयर्स के लिए। लेकिन दो लॉसेज जो 4 साल के लिए होते हैं। वन इज द स्पेकुलेटिव इनकम से आपको लॉस है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से कोई लॉस है, दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 ईयर्स ओनली। और owning and maintaining of resource, that can also be set up for the 4 years only. Now what is interhead? Loss of under any head of income. जैसे मैंने बताया हाउस प्रॉपर्टी है, वो 3 मकान है, आपको एक से इनकम हुई, दूसरे से लॉस हो गया, तीसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप तीनों का आपस में एडजस्ट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके 4 बिजनेस है, आपके एक बिजनेस में प्रॉफिट है, दूसरे में लॉस है, लेकिन स्पेकुलेटिव नहीं। स्पेकुलेटिव लॉस को नहीं, वो एक्सेप्शन बताऊंगा कहां का है। आपको कैपिटल गेन में है आप कर लीजिए, लेकिन कैपिटल गेन में एक्सेप्शन है, अदर देन कैपिटल गेन लिखा हुआ है इसीलिए। ठीक है जी। सैलरी में लॉस होता ही नहीं कभी, सैलरी में लॉस किस बात का, सैलरी में लॉस हो ही नहीं सकता। तो बाकी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आपको अगर होर्स मेंटेनिंग से लॉस है तो उस लॉस को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी इनकम से। अब सवाल एक और उठा, सवाल उठा कि मान लीजिए आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डेप्रिसिएशन से लॉस आ गया। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सर,
कहीं नहीं लिखा इस बात को, कहीं नहीं लिखा एक्ट में। अगर आपको क्योंकि आपको आ सकता है डेप्रिसिएशन तो मिलता है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी तो डेप्रिसिएशन मिलता है ना आपको 57 में, तो उसका क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन, वो आपको बेनिफिट मिलेगा 32(2) का, क्योंकि डेप्रिसिएशन का लॉस 32(2) से होता है। सेक्शन 70 to 79 में कहीं डेप्रिसिएशन की बात नहीं की है, 70 to 79 में कहीं डेप्रिसिएशन की बात नहीं की है। दैट इज गवर्न बाई सेक्शन 32। तो अगर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी डेप्रिसिएशन से लॉस आ गया, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर करंट ईयर लॉस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो लॉस होता ही नहीं, होता है जी, डेप्रिसिएशन लॉस हो जाता है। अगर मान लिया सबलेटिंग का बिजनेस करते हैं, आपने आपने कंप्यूटर लिए, आपने आगे सबलेट कर दिए, तो आपको डेप्रिसिएशन तो मिलेगा उसकी। या आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जो कि 56 में दे रखा है, तो यू कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन एंड द लॉस आल्सो कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्टेड। Now the basic principle is that loss under any head of income other than capital gain can be adjusted from another source of the same head except कौन कौन सी एक्सेप्शन दे रखी है? नंबर 1, शॉर्ट टर्म लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मुझे किसी ने एक अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी याद करने के लिए इसको, कि अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी 2 भाई हैं, तो अनिल अंबानी का लॉस तो मुकेश अंबानी ले सकता है, मुकेश अंबानी का लॉस अनिल अंबानी नहीं ले सकता। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इज मुकेश अंबानी एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज अनिल अंबानी। तो ये प्रिंसिपल याद कर लो। और लॉजिक भी है इसका। लॉजिक क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज बीइंग टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 20% और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 30% पे होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इसलिए कह दिया कि साहब अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, आप एडजस्ट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको 20%, आप तो 20% लूज कर रहे हैं ना सरकार वहां पे तो। लेकिन अगर रिवर्स करेंगे तो सरकार 30% लूज कर जाएगी, इसलिए रिवर्स को रोक दिया उन्होंने। यू आर गेटिंग माई पॉइंट प्रविंदर? लॉजिक की बात है ना, दिस इज द लॉजिक। व्हाई दिस लॉज, व्हाई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन? नो। थर्ड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी एडजस्टेड ऑफ कोर्स। एलटीसीजी में अगर लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस है, लॉन्ग टर्म से कर लीजिए, रिवर्स इज नॉट ट्रू। स्पेकुलेटिव लॉस है, दैट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट एनी स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। स्पेकुलेटिव इनकम से है तो स्पेकुलेटिव, आपका बिजनेस है, आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं स्पेकुलेटिव, उसमें लॉस आ गया तो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से एडजस्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज शुड बी ऑफ कोर्स, बिकॉज अगेन इट्स ए काइंड ऑफ सट्टेबाजी, तो वो वहां पर एडजस्ट होगा, बाकी नहीं होगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी अगर आप और कोई लॉस है, लॉस डेप्रिसिएशन कारण हो सकता है, दैट कैन बी एडजस्टेड। नाउ कम्स टू इंटर हेड एडजस्टमेंट। आपने इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर लिया, आपका लॉस एडजस्ट नहीं हुआ, आप दूसरे हेड में जाके एडजस्ट कर सकते हैं फ्रॉम अदर, लेकिन कैपिटल गेन को छोड़ दीजिए। अभी कैपिटल गेन का एक्सेप्शन पहले भी थी और इसमें भी है। क्या है? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन बट लॉस इन एनी अदर हेड, दैट कैन बी एडजस्टेड। सेकेंड एक्सेप्शन इज, लोग करते भी थे सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉय क्या करते थे? एक छोटा सा बिजनेस कर लिया करते थे और उसमें लॉस हो जाता था उनको। तो सैलरी का जो इनकम है उसके अगेंस्ट बिजनेस लॉस एडजस्ट नहीं। सैलरी के अगेंस्ट आप बिजनेस लॉस एडजस्ट नहीं करेंगे। लॉजिक की बात भी है। सैलरी एम्प्लॉय बिजनेस क्या करेगा भाई? कर रहा है तो अपनी सैलरी की इनकम को एडजस्ट करने के लिए कर रहा है। कैपिटल गेन का लॉस है, दैट कैन नॉट बी एडजस्टेड इन एनी अदर हेड ऑफ इनकम, इट हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड। तो कैपिटल गेन में एक्सेप्शन दे दिया कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म से कर लीजिए, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए भैया। लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर लीजिए, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। सिंपल एज दैट।
बिजनेस लॉस को हम सैलरी से एडजस्ट नहीं करेंगे। 2 ही एक्सेप्शन हो गए ना जी, बाकी आप ठाट से कीजिए। तीसरा, एक काम और करते थे लोग, जिसको भी रोक दिया अरुण जेटली साहब ने, सैलरीड एम्प्लॉय करते थे, आपकी सैलरी से इनकम है, क्या करते थे, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट ले लिया, उसमें 90 लाख रुपए का लोन ले लिया, 10% ब्याज से 9 लाख रुपए उसका ब्याज हो गया, अपनी सैलरी से उसको एडजस्ट कर लिया करते थे। रोक दिया, कह दिया कि साहब 2 लाख रुपए तक अलाउ करेंगे 2 लाख रुपए तक अलाउ करेंगे, 2 लाख से ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, आपका लॉस है उसके बाद भी आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, जब आपको रेंटल इनकम आएगी तो आप इसको एडजस्ट कर लेना, सिंपल। तो 3 एक्सेप्शन दी, सैलरी के अगेंस्ट में बिजनेस इनकम, बिजनेस लॉस नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख से ज्यादा नहीं एडजस्ट करेंगे, और कैपिटल गेन को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, इंट्रा हेड में भी, इंट्रा हेड में भी। ना हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हुआ, आपने कैरी फॉरवर्ड किया, जैसे मैंने बताया था, डेप्रिसिएशन बिकम्स द करंट ईयर लॉस, अदरवाइज वंस इट इज कैरी फॉरवर्ड तो फिर उसकी लाइन वही रहेगी, फिर वो इधर उधर नहीं भागेगा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आगे ले जाइए, 8 साल तक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट कर लीजिए, हम दे देंगे आपको। बिजनेस लॉस है, आगे ले जाइए, 8 साल तक एडजस्ट कर लीजिए बिजनेस लॉस से, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। लेकिन डेप्रिसिएशन में एक्सेप्शन है, स्पेकुलेटिव बिजनेस है, आप ले जाइए, 4 साल तक एडजस्ट कर लीजिए। कैपिटल गेन है, आप ले जाइए, आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन इसमें एक कमाल है, आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया, आपने कैरी फॉरवर्ड किया, अब आपका ऑप्शन है, आप उसको लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर लीजिए या शॉर्ट टर्म से कर लीजिए नेक्स्ट ईयर में भी। अदरवाइज आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म से ही होगा, लॉन्ग टर्म तो वहां पे आपका ऑप्शन है, आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका है, आपको एडजस्ट करना है, आप लॉन्ग टर्म से करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म से करना चाहते हैं। तो कई बार लोग, क्यों मैंने कहा इसलिए, मान लीजिए आपको अगले साल में शॉर्ट टर्म लॉस है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आप कहोगे साहब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्यों एडजस्ट करूं, मैं तो 20% टैक्स ले लूं ना मेरे से, मेरा 30% को आगे चलने दो। सुभाष जी, मैं सही कह रहा हूं ना? वो तो ये चाहेगा ना कोई भी एसएससी कि साहब मैं पागल थोड़ा ना हूं, मेरा ये जो लॉस है अगले साल तो मुझे 30% टैक्स देना होगा, वैसे लॉन्ग टर्म पे आप 20% ले लो ना, तो मैं उसको तो कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, उसको एडजस्ट ना 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 सर, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन आपके पास है कि आप किससे करना चाहते हो, ऑप्शन आपके पास, आप किससे करना चाहते हो। और लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर, जैसे मैंने बताया था, केवल 2 एक्सेप्शन है, स्पेकुलेटिव बिजनेस वाला एंड मेंडिंग एंड ओनिंग ऑफ द हॉर्स रेसेस, वहां 4 साल है, बाकी सब जगह 8 साल है, डेप्रिसिएशन में टू द इंफिनिटी है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सेक्शन 79, बहुत कम पढ़ते हैं हम सेक्शन 79 को, बहुत इश्यूज रेज होते हैं इसमें, बहुत इश्यूज रेज होते हैं। सेक्शन 79 कहता क्या है? वो ये कहते हैं कि सर आपने, मान लीजिए आपको 2013-14 में लॉस हुआ, 14-15 में लॉस हुआ, और आप 19-20 में उसको एडजस्ट कर रहे हैं कंपनी के केस में, और कौन सी कंपनी? इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, यानी क्लोजली हेल्ड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जिस साल में लॉस हुआ और जिस साल में एडजस्ट कर रहे हो, 51% होल्डिंग सेम होनी चाहिए, नहीं तो हम आपको लॉस एडजस्ट नहीं करने देंगे, सिंपल सी बात। 2014-15 में मैं और लवलीन चावला जी की कंपनी थी, हम दोनों के शेयर होल्डर थे, ठीक है जी, और लवलीन जी, मैंने शेयर ट्रांसफर कर दिए और 51% अब इनके पास नहीं है,
14-15 का लॉस है, 19-20 में एडजस्ट कर रहे हैं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। 51% होल्डिंग, सर बहुत गलती करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं लोग, शेयर होल्डर चेंज हो जाते हैं, पता नहीं चलता 51% कब चला गया, लॉस एडजस्ट कर लेते हैं, बाद में दिक्कत आती है, पेनल्टी भी देते हैं, ब्याज भी देते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अगर 51% होल्डिंग नहीं है तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। अब दिक्कत आई थी स्टार्टअप को। स्टार्टअप में क्या हुआ, स्टार्टअप के केस में क्या दिक्कत आती थी, स्टार्टअप ने शुरू किया, उसको लॉस हो गया, अब उसको इन्वेस्टर चाहिए, वो 3-4 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल देते हैं। अब जो इन्वेस्टर होता था वो कहता था मुझे लॉस ही नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि 51% होल्डिंग तो मेरे पास नहीं है। एक चेंज किया, बड़ा ब्यूटीफुल चेंज है, उसमें ये कहा कि सर अगर आपके शेयर होल्डर भी सेम है, फॉर एग्जाम्पल मैं, सुभाष वर्मा जी, लवलीन चावला जी और प्रविंदर, हमने एक स्टार्टअप बनाया, हम 25-25-25% के शेयर होल्डर हैं। नॉर्मल सिचुएशन होती तो कम से कम 51% होना चाहिए था हमारे पास, तभी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, जो कि मैंने आपको स्टार्टअप के टाइम पढ़ाया था, ATIAC वाला, अगर हमने अपने 20-20% शेयर बेच भी दिए, 80% किसी और को दे दिए, लेकिन हम चारों के चारों हैं, हमने 24% बेच दिया, 96% बेच दिया, लेकिन हम चारों 1-1% भी होल्ड कर रहे हैं, हम एक शेयर भी होल्ड कर रहे हैं, 15-16 का लॉस है, मैं 20-21 में एडजस्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डर शुड बी सेम। अब सिचुएशन दूसरी समझो, मान लीजिए परविंदर ने कहा भाई मैं जा रही हूं, मैं नहीं रुकती तुम्हारे साथ, तो अच्छा काम नहीं करते, ये चली गई। अब हम रह गए 3 75 वाले, तो चारों तो नहीं है हम, तो आइदर ऑफ द सिचुएशन, या तो 51 हमारे पास हो, एडजस्ट कर लेंगे, या जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है, जिस साल में लॉस हुआ था, हर साल का देखना है सर, ये हर साल का देखना है जब भी आप एडजस्ट करेंगे, हर साल का, ईयर वाइज मिलेगा आपको बेनिफिट, ईयर वाइज ही आपको देना ही होगा बेनिफिट। हर साल 31 मार्च को देख लो, या तो वो शेयर होल्डर होने चाहिए या 51% होल्डिंग होनी चाहिए। तो 79 में स्टार्टअप को बेनिफिट दे दिया, बट इट शुड बी एलिजिबल स्टार्टअप। एलिजिबल स्टार्टअप मींस who has a interministerial certificate under section ATIAC। खाली रजिस्टर्ड होने से बात नहीं बनेगी, ATIAC में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, एक सिचुएशन तो ये होगी सर कि आपको एलिजिबल स्टार्टअप होना चाहिए। दूसरा, विद इन 7 years तक का लॉस, 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्टार्टअप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, लोग भूल जाते हैं, इस गलती करते हैं हमेशा। मतलब आप अगर 2013 में आपकी स्टार्टअप बनी, तो 2020 तक के लिए कंडीशन है 4 शेयर होल्डर वाली, उसके बाद के लिए नहीं है सर, उसके बाद के लॉस के लिए नहीं है। उसके बाद का अगर लॉस है तो फिर नॉर्मल सिचुएशन में चले जाओगे आप। देयर आर अदर एक्सेप्शन टू 79, जहां पे डेथ के कारण अगर शेयर ट्रांसफर है, या फॉरेन सब्सिडी मर्ज हो गई है, या IBC कोड में रेजोल्यूशन से कंपनी, तो ये नॉर्मल सिचुएशंस हैं, वो तो उसमें 79 अप्लाई नहीं होता। अब IBC में अगर शेयर होल्डर चेंज हुए तो फिर नहीं होगा, या कंपनीज एक्ट में सेक्शन 241 242 में जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है चेंज ऑफ मैनेजमेंट के, उस केस को छोड़ के बाकी में। तो बेसिक 2 बातें आप समझ लीजिए, 51% वाली और एलिजिबल स्टार्टअप में नंबर ऑफ शेयर होल्डर शुड बी सेम और 51% होना चाहिए। तीसरी सिचुएशन, सेक्शन 78, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फर्म्स। हम रोज फर्म में से निकाल देते हैं, घुसा देते हैं, पार्टनर चला गया, पार्टनर आ गया। सर अगर पार्टनर चला गया तो उसके हिस्से का लॉस भी चला गया, अगर पार्टनर चला गया तो उसके हिस्से का लॉस भी चला गया। ये बेसिक प्रिंसिपल आप समझ लीजिए। लेकिन अगर रिकंस्टिट्यूशन हुआ है ड्यू टू द डेथ के कारण से हुआ,
या सक्सेशन प्लानिंग में पार्टनर आया, मतलब फादर की जगह बेटा आ गया, तो एक्सेप्शन है। अदरवाइज ये ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप रिकंस्टिट्यूशन करें, अगर एक पार्टनर जा रहा है तो उसके हिस्से का लॉस भी जा रहा है। तो now this is the end of topic of set off and carry forward. Saurabh ji, any question on this? We can take a break of 2-3 minutes. सौरभ जी? यस सर, यस सर। चैट बॉक्स में सवाल मैं चेक करता हूँ सर, एक सेकंड। क्या कोई हैंड? ये क्वेश्चन आया मिनाली शाकाई, हाउ शो स्पेकुलेटिव लॉस इन शेयर्स इन आईटीआर टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ये उसमें कॉलम होगा ना आईटीआर में, उसका देखो मैंने आईटीआर तो भरी नहीं कभी, लेकिन उसमें होगा कॉलम, मतलब इट्स अ लॉ पॉइंट, there has to be a column there and I think there is a column sir उसमें। मतलब परमिंदर आप बताओ, आप भरते हो रिटर्न सीएफएल? सीएफएल का शेड्यूल होता है, उसमें फिल कर सकते हैं। वेरी नहीं, एक्चुअली सर वो जो पूछ रही है वो ये कह रही है कि जो लॉस ऑफ शेयर है वो लॉस ऑफ शेयर्स में इंट्राडे में होता है। जो स्पेकुलेटिव लॉस होगा वो इंट्राडे में होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब क्या कहते हैं, जो हमारा पीएनएल बनता है आईटीआर के अंदर वो बनता है कंसोलिडेटेड, स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव। फिर उसमें से जाके हमें स्पेकुलेटिव बाइफरकेट करना होता है, क्योंकि वो अलग अलग लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, नॉन स्पेकुलेटिव एंड स्पेकुलेटिव। अब तो आप अलग अलग बनाइए ना सर, आप एक साथ बनाते क्यों है? देखिए, एक तो बात मान लीजिए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, इट इज ऑलवेज ए बिजनेस लॉस नाउ, इट इज नॉट ए स्पेकुलेटिव लॉस। तो इंट्रा डे वाला रह गया आपका तो आप अलग अलग बनाइए ना उसकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आप बनाते क्यों साथ में उसके? आप दाल में चावल क्यों मिलाते हैं? वो आप सर एक स्टडी बनानी क्यों? नहीं, वो अलग अलग तो करते हैं आईटीआर के अंदर। वो स्पेकुलेटिव लॉस का अलग से शेड्यूल दिया तो है उन्होंने। सर आप बट आप सर का प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग बनाइए ना। क्यों परविंदर, आप बताओ प्लीज। मैं मतलब थोड़ा मेरा कमजोर है हाथ, में कोई रिटर्न फाइल नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं पता। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस साल का वो है कि शेड्यूल बीपी के अंदर जाके उसे बाइफरकेट करने में दिक्कत आती है। सर तब पीएनएल में भी अलग से कॉलम होता है जहाँ पे हम अपनी स्पेक्युलेटिव इनकम और स्पेक्युलेटिव लॉस अलग से दिखा सकते हैं, और शेड्यूल सीएफएल में जाके हम उसको कैरी फॉरवर्ड लॉस में दिखा सकते हैं। ठीक है मैम, मैं एक बार दोबारा रिविजिट कर लूंगा आईटीआर को, इस बार तो डेडलाइन बढ़ी नहीं थी तो। जी, पीएनएल में है, बिल्कुल बॉटम में अगर आप देखेंगे तो स्पेक्युलेटिव का अलग से कॉलम है, उस पे स्पेक्युलेटिव इनकम और लॉस हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। देन सीएफएल में जाके आप कैरी फॉरवर्ड लॉस कर सकते हैं। ओके मैम, ओके जी। एनी अदर क्वेश्चन सर? So now I come to the last topic of the day, that is taxation on the foreign remittances. There are two sections, very important section, practical life, day-to-day life. Lot of questions and queries are always asked. How to file 15 CACB, how to get a lower deduction certificate, where it is written, and what is section 195. Okay. So I start with, there are 4 important provisions regarding this. One is section 195 itself, very elaborate section. Now, so many changes has been made in this section. Section 206C, 1 capital H, that is the remittances, TCS on the remittances. It was inducted in the Finance Act 2020 by the Honorable Lady Finance Minister of India, Mrs. Nirmala Sitharaman. Form 15 CACB, that is a certificate or a declaration while making the remittances under section 195. Please understand, 15 CACB is not for 206C. वो तो TCS अपने आप ही विदड्रॉ कर लेंगे, तो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. Then the relevant rule is section 37BB, which gives on which payment TDS is to be deducted and which are the payment which are beyond the TDS. जो TDS ना काटने वाली पेमेंट थी, अब इंपोर्ट को छोड़ दीजिए 37BB में, बाकी तो LRS की जो पेमेंट थी उस पर तो TDS लगा ही दिया.
बट एवरीबडी शुड विजिट दिस रूल 37BB, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। आपको पता चल जाएगा कि ऑन विच TDS is to be withheld or not. Now, please read this section, very beautifully worded section, very deep insight. Any person, sir, any person responsible to paying to a non-resident. Any person. My question is whether a foreigner is any person or not. Yes. एक बंदा USA में बैठा हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया के बंदे को पेमेंट कर रहा है, तो whether section 195 will come into play or not. Can anybody answer? Yes, sir. It is applicable both to resident and non-residents. Any person has been defined in 2 clause 31. Any person, not assessee. यहाँ शब्द assessee नहीं लिखा था, यहाँ शब्द assessee नहीं लिखा था, यहाँ शब्द लिखा any person. assessee लिखते फिर तो दिक्कत हो जाती सर। वोडाफोन में यही तो हुआ था सर, 2 बाहर की कंपनियों ने शेयर ट्रांसफर किए थे, they were not assessee in India. ठीक है, तो एनी पर्सन। हाँ, लेकिन आप 1-2 फॉरेनर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इंडिया क्या मतलब टैक्स का? इंडिया कैसे टैक्स लेगा उसके ऊपर? इंडिया कैसे टैक्स लेगा? लंदन में बैठे एक आदमी ने न्यूयॉर्क में बैठे दूसरे आदमी को शेयर बेच दिए, हम कहते हैं हमें टैक्स दो। वो टैक्स हमें क्यों देगा? सर वो टैक्स जब देगा, मान लीजिए हमारे पास जो शेयर्स हैं वो इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, तो साइटस ऑफ इंडियन शेयर्स सेक्शन 9(1) में जब जाते हैं, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, उसमें लिखा ना इनकम अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस कनेक्शन और फ्रॉम एनी असेट्स और टू एंड फ्रॉम एनी असेट्स सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल है। और हमने जब सेक्शन 5 पढ़ा था तो हमने कहा था कि एनी इनकम which is accrue in India, arise in India, deemed to accrue in India, deemed to arise in India, or received in India, that will be taxable in any case in India, provided it is not exempted or the tax is not to be levied as per DTAA. अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में छूट है तो बात दूसरी है। जैसे इंडिया मॉरिशस की टीटी थी, जहां हम कैपिटल गेन को छोड़ दिया करते थे, अब तो चेंज कर दिया हमने ग्रैंडफादरिंग रूल देके, otherwise it will be taxable. So any person responsible for paying to a non-resident not being a company क्योंकि if it is a domestic company then section 192 to 194 will be applicable. But if it is a foreign company, then of course section 195, the rate in force, the rate of a deduction in case of foreign company will be that of rate in force as given in section 195. Any person responsible for paying to a non-resident any sum which is chargeable under the provision of this act. Second condition is that sum should be chargeable in India as per the provision of this act. अगर वो sum chargeable नहीं है तो वो टैक्स नहीं लगेगा, तो उस पर टैक्स विदहोल्ड नहीं होगा, तो टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। ठीक है ना जी? अब आप सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी को बिजनेस प्रॉफिट है, यहां पे उसकी पी नहीं है और बिजनेस प्रॉफिट है, कमीशन आपने कमा ली। अब चूंकि हमारे यहाँ पर डीटीए में, डीटी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, बिजनेस इनकम को तभी टैक्स चार्जेबल होती है इंडिया में अगर वहां पे उसकी पी है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है। बिजनेस इनकम अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होती, तो उसमें विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं लगेगा। 4 इनकम को स्पेसिफिकली हमने डीटीए में दिया है, सेक्शन 9 में भी दिया है, क्योंकि सेक्शन 9 इज ए वाइडर टर्म, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया और असेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो सारी टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन जहां पर डीटीए पिक्चर में आ जाएगा वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, वहां पर टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। तो एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग ए कंपनी और टू अ फॉरेन कंपनी एनी इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है ना जी, बट द इंटरेस्ट शुड नॉट बी ऑफ 194 LB LC LD, जो क्योंकि वहां पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स दे रखे हैं डिडक्शन के। Any sum chargeable to tax under the provision of this tax, the sum should be chargeable to tax
under the provision of the Income Tax Act, except salaries, because salaries is always tax is deducted under section 192. ठीक है ना जी ये बात तो 192 में tax. Then they have to deduct the tax at the rate in force. हमने पहले दिन लेक्चर में समझाया था इस बात को कि व्हाट इज रेट इन फोर्स, व्हाट इज MMR. तो रेट इन फोर्स इज गिवन इन, where it is given? It is given in schedule to the Finance Act, schedule 1 to the Finance Act. The rate in force दिए होते हैं, वहां पर आपको उस रेट पर उसको टैक्स को डिडक्ट करना होगा. You have to deduct, you have to withhold the tax. You are getting my voice ना? Okay. Yes, sir, you are getting your voice. Yeah, thank you, sir. Thank you. Now, this section explanation 2 is very important explanation to section 195. Very important explanation. If you read section 195 word by word, you will understand each and everything. Obligation to deduct tax applies to all the persons, whether resident or non-resident. As I said, if the business connection is there, if the income is chargeable as a deemed to accrue or arise in India under section 9(1), then you have to withhold tax, except the income is specifically not chargeable under DTA. DTA में अगर chargeable नहीं है तो आपको tax withheld करना ही पड़ेगा. Now, whether the non-resident have a place of business or any presence here or not, you have to deduct the tax. Except, जैसे मैंने बताया DTA कुछ अगर नहीं है तो otherwise आपको tax withheld करना है. Whether that non-resident have any presence in India or not, the liability is there. Now what happens, practically what happens, मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट ने एक मकान बेचा 2 करोड़ रुपए में इंडिया में, because the property is situated in India, income is deemed to accrue or arise in India. For that, on the sale of that property, it is given in section 9(1). अब मान लीजिए एक आदमी लंदन में रहता है, उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में उसने बेच दी, तो कैपिटल गेन will arise in India. Now the question arises, in case of resident, we deduct tax at the rate of 1%, 194 IA. But in case of non-resident, what happens? Because the sum is chargeable to tax. Sum is chargeable to tax. And you have to withhold the tax on the whole of the amount. अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 20% अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20% तो हो गया, प्लस सरचार्ज हो गया 25%, प्लस 4% सेस हो गया. ठीक है ना? Almost 26% tax is there then. And 26% of 2 crore is 52 lakhs. Now what to do? Now you can go for a lower deduction certificate under section 197, 195, 2, 3 and 4. These are the sections. You can go for the lower deduction. You can apply with the assessing officer in form number 13 pursuant to rule 28. आप जितनी प्रॉपर्टी आप सेल परचेज करते हैं और जब भी आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट द पेमेंट इज नॉट मेक टू अ नॉन रेजिडेंट. If you are making a payment to a non-resident, please deduct tax at the whole of the amount of the consideration, or you get a certificate of lower deduction from the assessing officer. From the assessing officer. ये लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बाद में टैक्स पेनल्टी, क्योंकि तो पैसा ले गया एनआरओ अकाउंट में, आपने एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, वहां से उसने रेमिट करवा लिया, सरकार आपको पकड़ लेगी कि आप बताइए आपने पैसा कैसे दे दिया. इसलिए whenever you are making a transaction of the property, मैंने बहुत केस देखे हैं, please ensure that it is not a payment to a non-resident. Otherwise, you have to deduct tax at rate in force, or you have to get a lower deduction certificate. But you can apply lower deduction certificate, and the facility given is that anybody can apply, even the seller can apply, or the buyer can apply, or your authorized representative can also apply for lower deduction certificate or nil deduction certificate. So you have to take a certificate of lower deduction from the assessing officer. Otherwise, you have to withhold the tax at the rate in force. And another is, and if you are making the payment, say for the royalty, for fee for technical services, or for interest, and you are remitting that amount out of India, then the bank always asks you to give declaration in section in form 15 CA and a certificate of chartered accountant in section 15 CB. 15 CA CB आपसे मांगते हैं. And
while filling this form or giving a certificate, please ensure that each and every column you have studied that agreement and you have make the right calculation of withholding tax. ये आपका DTA में क्या रेट है, आपका यहाँ पे इनकम टैक्स में क्या रेट है, या रेट इन फोर्स क्या है. लोग गलती करते हैं, आप DTA का बेनिफिट दे रहे हैं. अब DTA का बेनिफिट देते वक्त आपको देखना पड़ेगा उसका रेजिडेंसी कहाँ का है, टैक्स रेजिडेंसी कहाँ का है. और जनरली हमने सॉफ्टवेयर में देखा है, बिलिंग आती है सिंगापुर से, पेमेंट जाती है USA में, तो आपको टैक्स रेजिडेंसी देखना है कि कहाँ का है, TRC कहाँ से बिलिंग हुई है, आपको TRC कहाँ का है, तभी आपको DTA का बेनिफिट आप उसको दे सकते हैं. क्योंकि DTA बेनिफिट can be given to a person who has a TRC, tax residency certificate, or he should be a resident of that country. This is the law. So in 15 CB, it is a certificate from the chartered accountants, and please, chartered accountants who are issuing this certificate, please ensure that each and every column you have read it carefully and you have made the right calculation of tax. Otherwise, you will also be held responsible for that. In 15 CA, there are Part A, Part B, Part C, and Part D. Part A, if the remittance is below 5 lakhs, then you have to fill Part A. And Part B, if the remittance is below 5 lakh and certificate of lower deduction, as I said, is there, then you have to fill Part B. Remittance, if it is more than 5 lakhs, and then you have to obtain a certificate of chartered accountants. If there is no lower deduction certificate, then the chartered account certificate under section 15 CB, and a liability is there on the chartered accountant to issue a right certificate. Those who are issuing that certificate, please make sure that all the information given in the certificate are correct. And Part D, if the remittance is not chargeable to tax, please ensure if you are filling that form, the income is really not chargeable to tax in India. Read carefully section 9 and then the DT of that country to whom the remittance is being made. Otherwise, you may land into a problem. As far as TCS on foreign remittance is concerned, I think we have a detailed discussion on that. I'm just summarizing again for the benefit of those who have joined today. This is a new section, and if an authorized dealer is remitting under the liberalized remittance scheme, LRS is a scheme of Reserve Bank of India where you can remit up to $2.5 lakh in a year without any permission from the Reserve Bank of India. But now, if the remittance is more than 7 lakhs rupees in a year, 7 lakhs, then a tax at the rate of 5% will be collected by the authorized dealer, that is the bank who is remitting that amount. And if the PAN or Aadhaar number is not given, then the rate of withholding will be 10%. But there was certain hue and cry when this provision was brought in, that if you are remitting the fee for your children, आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वहां पर आप पैसा रेमिट कर रहे हैं, बोले साहब 5% आप यहाँ पे विदहेल्ड कर लेंगे. 1 करोड़ रेमिट किया, 5 लाख आपने टैक्स काट लिया हमारा. तो कहा कि ठीक है, इन केस ऑफ रेमिटेंस, बट इट शुड बी आउट ऑफ द एजुकेशन लोन टेकन बाय यू अंडर सेक्शन 80E. हम कल पढ़ेंगे 80E के बारे में. अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, और एजुकेशन लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, those who are eligible under section 80E, then the withholding tax will be 0.5%. I do not know why this withholding is required in case of education to children. Very surprising. But resident के लिए होती है सर, विवेक जी. TCS on exceeding 7 lakhs, अगर 7 लाख से ऊपर आपने किया है तो बैलेंस अमाउंट पर, मान लीजिए आपने 10 लाख भी रेमिट किया तो बैलेंस अमाउंट पर आपको 5% TCS होगा. एंड अनदर इज इफ यू आर परचेजिंग एनी टूर पैकेज, ओवरसीज टूर पैकेज, हम जाते हैं बाहर, और ये क्योंकि ये प्रोविजन भी इसलिए लाया गया था, more than 2 crore people they visited out, they went out of India, but most of them didn't file the return of income. तो उनको ट्रैप करने के लिए प्रोविजन लाया है कि इफ यू आर परचेजिंग ए ओवरसीज टूर प्रोग्राम, टूर पैकेज, then TCS at the rate of 5%, and there is no basic exemption limit. आपने 50,000 रुपए भी दिए ओवरसीज टूर पैकेज के लिए,
the dealer or the person or the who is selling that package, that will withhold the tax at the rate of 5%. Again, if PAN or Aadhaar is not there, the rate will be 10%. And 10% is a very huge sum, because अगर आपने 50,000 रेमिट किया टूर पैकेज के लिए, तो बिफोर प्लानिंग ए टूर पैकेज, प्लीज मैनेज हाउ टू मेक इट, otherwise you will be in a suit. I think I have covered all the provisions. Now we can have a question answer session for 10-15 minutes. Please raise your hand. हाँ विवेक जी बताइए, आप क्या पूछ रहे थे? सर एक क्वेश्चन इस पे था, टीडीएस पर ही था। क्या कहते हैं, क्लाउड सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो सर इसको क्या कहते हैं, सेक्शन 194 जे में कवर कर रहे हैं या 194 सी में कवर कर रहे हैं? क्योंकि क्लाउड सर्विसेज में तो पीछे सर्वर भी यूज हो रहे हैं। सर इस पे ना बहुत सारे डिसीजंस हैं, और विवेक जी आप ना एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, मैं आपको कल सारे भेज दूंगा। अगर यहाँ पे वो डिस्कस करने बैठेंगे तो टेक्निकलिटीज तो बहुत लंबा काम हो जाएगा सर। ओके सर, इसमें बड़ी डिबेट और डिस्कशंस हैं, तो आप ना मेरा नंबर आपके पास है, मुझसे कल बात कर लीजिए, मैं सब भेज दूंगा आपको सर। एनी अदर क्वेश्चन सर? सौरभ जी? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर। यस सर, यस सर। अगर आप No, if there is a carry forward loss due to sale of long-term capital loss because of shares, and in the next year there is a long-term capital gain for sale of property, can these be adjusted? Why not? It should not be a speculative loss. No, it's not no speculation loss. It's not. Why not? Why is this doubt, sir? No, just आपने वो इंटर आया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। I'm not. ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you very much. हाँ परविंदर, आप क्या कह रहे थे? ताहिल साहब पूछिए। सर चैरिटेबल ट्रस्ट पे क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। सर ट्रस्टी ने अगर अपनी प्रॉपर्टीज मॉर्टगेज की है बैंक के पास और लोन लिया है, और लोन आया है ट्रस्टी के नेम पे, तो क्या वो इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, जो वो इंस्टॉलमेंट्स जाएंगी और सब चीजें? नहीं, आप कह रही है कि आपने लोन लिया ट्रस्टी ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पे, और उसके बाद ट्रस्ट को दे दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब ट्रस्टी ट्रस्ट से ब्याज चार्ज करेगा ना? तो वो कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, जो वो ब्याज दे रहा है तो? हाँ, तो मतलब वो ऐसा तो नहीं, मतलब वो बेनिफिट का सीन तो नहीं आ जाता ना कि ट्रस्टी ने अपने देखिए मैडम, अगर आपने पहले लोन लिया, लोन लेके आपने ट्रस्ट को दिया, तो आप उसे ब्याज तो लेंगे ना, आप ब्याज कैसे भरेंगे अदरवाइज? अब क्या होगा, जो ट्रस्ट है उसको इंटरेस्ट मिलेगी, छूट एप्लीकेशन की, आपको जो मिलेगा 57 में मिलेगा। 57 में आपको मिलेगा ना, आप बिकॉज यू आर पेइंग इंटरेस्ट फॉर अर्निंग द इंटरेस्ट, तो आप 57 में आप दे लेंगे। ओके, थैंक यू। हाजी ताहिल साहब, आप क्या पूछ रहे थे? So let us end the session. If you have any question, you can ask to me or in the WhatsApp group. My telephone number you can note down. My telephone number is 98110 15509. Please always feel free to contact me. I am always available. मेरा फोन हो सकता है कभी जब मैं वेबिनार या कॉन्फ्रेंसेस में होता हूँ, but I will revert back to you always, sir. Or you can drop me a mail, sir. My email ID is casunilkgarg@gmail.com. Anytime you can ask a question, sir. You are most welcome always. And now I will request Raj Chawla ji, before ending the session,
to say a few words. Over to Dr. Chawla ji. Thank you, Sunil ji, for a wonderful deliberation on this topic. These topics are very useful to all of us in this scenario. And जो आपका बताने का तरीका है वाकई बहुत अच्छा